Hello everyone, welcome to today's analysis video of the stocks and the index. You guys may be knowing that today I traded the stock of Infosys and minted a profit of almost close to 35,000. But profit and losses in the market is not important. What matters in the market is that what was the logic behind that particular trade. So this is the chart of Infosys. Guys, remember all the execution was done on 5 minute time frame and analysis was done on 1 hour time frame. If you guys will switch to hourly time frame, this was a strong resistance zone in Infosys. And as soon as I saw a very strong impulsive move in the morning in Infosys, right? You guys are seeing since the starting of the morning there was a strong rally in Infosys with strong huge candles, huge bullish candle. And as soon as this particular candle closed above the resistance zone, this was a confirmation for me. And just after the confirmation, what did we saw? We see a retracement over here. If you guys will add the Fibonacci retracement over here from the top to bottom, then from the level of 0.236 we saw a bounce. And you guys have been knowing that there are four golden zones in Fibonacci. The very first zone is 0.236, the second is 0.382, the third is 0.5, and the fourth is 0.618. Remember, whenever the market is in trending, okay, whenever a particular stock or the market is trendy in nature, and if the market takes a reversal from the level of 0.236 or from the level of 0.382, then we can assume that the trend is very much strong. So what did we saw over here? From the level of almost 0.236, we saw a reversal. And what is more important, as soon as we are connecting the Fibonacci from the top to bottom, we are also seeing a formation of inverted head and shoulder. This is the shoulder, this is the head, and again a shoulder. And this was the breakout. Means after a strong impulsive move, we are seeing a retracement and retracement with a inverted head and shoulder kind of pattern. So this was a close to a very good setup over here. And as soon as this particular candle closed above the resistance zone, I immediately took the entry above the high of this particular green candle and kept my stop loss just below this particular shoulder, right? That is this particular swing. And at the end I got almost more than 1 is to 1.5. So this was the trade logic behind the trade of Infosys. Now for tomorrow I've selected few stocks, so let's see the logic of those particular stock. So the very first stock is Berger Paint over here, so let's see the logic of this particular stock. In Berger Paint, what we are seeing an impulsive move over here on daily time frame, right? After an impulsive move, we see a correction, and again we are seeing a continuation. So if the low of this particular red candle is being taken out tomorrow, definitely you guys can plan to take a bearish trade on this particular stock. Another stock is Trent. तो ट्रेंड का लॉजिक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन, राइट? यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी है, मतलब चेंज इन ट्रेंड. बिकॉज दिस वाज अ बेस, ये एक बेस है, फाइनली बेस का ब्रेकडाउन हो गया एंड हम लोग को फर्स्ट इनिशियल लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है. एंड लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन तो दिख रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है. सो कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर इनसाइड कैंडल का लो अगर ब्रीच हो जाता है, तो आप लोग डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. द थर्ड स्टॉक इज टाटा स्टील. टाटा स्टील आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया कल के दिन ही. ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे अच्छा दिख रहा था, बट टेक्निकली ये साउंड नहीं दिख रहा था. रीजन बीइंग कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो आया था कल के दिन, लेकिन क्लोजिंग इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के आसपास आया नहीं था. रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग तो आया, लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, विच इज एन इन्वर्टेड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न, राइट? इस टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन था. लेकिन आज यहाँ पे क्या हुआ इन इंट्राडे? आज यहाँ पे बेयर्स ने ट्राई तो करा कि प्राइस को नीचे की तरफ पुश करे, बट इमिडिएटली बुल्स ने मार्केट को डोमिनेट किया, हायर लेवल पे प्राइस को क्लोज किया. तो उसके कारण यहाँ पे एक पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है. तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर टाटा स्टील निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो. अनदर स्टॉक इज इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक में अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव है, राइट? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव है, एंड बेरिश मूव के बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ है. अगर आप लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे, तो मैं आपको जस्ट कनेक्ट करके दिखाता. सो दिस इज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट ओवर हियर. सो अगर आप टॉप से लेके बॉटम तक को कनेक्ट करोगे, एंड तो आपको दिख रहा होगा ये जो एक कंटिन्यूएशन दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव मिला. डाउन मूव के बाद यहाँ पे हो क्या रहा है? जो 0.5 का लेवल है, विच इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन लेवल, वहीं से हम लोगों को एक
साफ रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। एंड रिजेक्शन पे किस टाइप से देखने को मिल रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर जोन से एक रिजेक्शन देखने को मिला, प्राइस ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया एंड आज के दिन यहाँ पे इंडसइंड बैंक में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन अगर इंडसइंड बैंक इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के बिलो निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान कर सकते हो। Another stock is Amar Raja Battery. Amar Raja Battery, if you guys will switch to hourly time frame over here, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है, राइट? दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रेकडाउन ओवर हियर। तो कल के दिन अगर अमर राजा बैटरी इस पर्टिकुलर ग्रीन रेड कैंडल के बिलो अगर क्लोज करता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। रीजन भी यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव आया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, फिर एक कंटिन्यूएशन आएगा। तो ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ सकता है कल के दिन या इन द कमिंग डेज, तो आप लोग इस पर्टिकुलर रिट्रेसमेंट को कैच कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज HCL टेक्नोलॉजी। तो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज लुकिंग गुड इन बोथ द टाइम फ्रेम, दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम एज वेल एज ऑन आवर्ली टाइम फ्रेम। तो आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा होगा यहाँ पे एक डेरवर्क्स बॉक्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट? डेरवर्क्स के बारे में आप लोग को पता होगा, डेरवर्क्स वाज अ ट्रेडर in the early 1930s, so he gave a theory. According to him, market travels in cycle। तो एक बॉक्स टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ बॉक्स होता है, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स को टेक्निकली हम लोग डेरवैक्स बॉक्स बोलते हैं। तो मार्केट में आप बहुत लोग इसको रेक्टेंगल भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर हो या आप लोग प्राइस एक्शन डीपली पढ़े होगे तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ डेरवैक्स बॉक्स। तो कल के दिन अगर एलसीएल टेक इस पर्टिकुलर बॉक्स के अबव क्लोज कर दे, जो कि ऑलरेडी आज लग रहा है देखने से टेक्निकली कि क्लोज कर चुका है, तो कल के दिन इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर एचसीएल टेक्नोलॉजीज निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज डीएलएफ ओवर हियर। तो डीएलएफ में अगर आप लोग आवरली टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, राइट? दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द कप, ये आपका कप हो गया। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द हैंडल एंड अगर आप लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ रेजिस्टेंस जोन। तो कल के दिन अगर डीएलएफ इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकली तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। रीजन बिंग क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन है। Another stock is SBI Life. So let's discuss the logic behind this particular stock. Let's switch to hourly time frame over here. तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी एक inverted head and kind of shoulder का pattern है। This is a shoulder, this is the head and again a shoulder. And finally ये stock congestion में था and congestion से आज के दिन बाहर आ चुका है। तो कल के दिन अगर SBI Life इस particular green candle की हाई के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बेरिश बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट? अबव दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल। तो yeah, you guys can plan to take a bullish trade on this particular stock. Another stock is Ipca Lab. तो यहाँ भी एक डेरवेक्स बॉक्स का फॉर्मेशन है। अगर आप लोग को प्राइस एक्शन का एक थ्योरी होता है जिसको हम लोग वीक ऑफ थ्योरी बोलते हैं, तो वीक ऑफ थ्योरी में क्या होता है, पहले एक मार्केट में शार्प अप मूव आता है, उसके बाद एक बेस का फॉर्मेशन होता है, फिर एक कंटिन्यूएशन होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक शार्प अप मूव आया एंड यहाँ पे एक प्राइस साइडवेज हो गया, कंसोलिडेट कर एंड फाइनली इस पर्टिकुलर रेंज से प्राइस बाहर की ओर निकला है। And you guys may be knowing this particular stock is trading near the round level of 1200, and I have told you multiple times that the round number in the market are the big psychological barriers, they are considered as the big psychological support or resistance। तो कल के दिन अगर इप्का लैब 1200 के above निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। Remember one thing guys, before making the YouTube videos I try to update all the charts on my Telegram handle, सो प्लीज डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ओवर देयर। तो उसमें मैं एक एक ट्रेड को ब्रेक डाउन करता हूँ एंड आज जो भी आपको लॉजिक मैंने अपने यूट्यूब पे बताया कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक था उसका लॉजिक क्या है एंड आप लोग उस पर ट्रेड कैसे बना सकते हो, तो डिटेल में उसका ब्रेक डाउन मेरे टेलीग्राम हैंडल पे रहता है। तो आप लोग उस पर्टिकुलर चार्ट को सेव कर सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो जो भी नो वॉइस ट्रेडर है या न्यूबीज ट्रेडर है तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। Now let's come about the index. Now let's see the Nifty 50 and Nifty Finances, Nifty 50 and Nifty Bank. So as discussed yesterday on my Telegram handle, I already told you that Nifty 50 is looking strong to me. Reason being कि यहाँ पे एक resistance zone है. This is a resistance zone over here. And यहाँ पे एक fresh breakout आया है। तो ब्रेकआउट आता है जब भी मार्केट में किसी भी एक पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट आता है एंड प्राइस उस पर्टिकुलर जोन को टेस्ट करने आता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बहुत हाई कि प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल दिखाएगा। तो प्राइस निफ्टी 50 कुछ इसी तरह आज के दिन मूव किया एंड कल के दिन निफ्टी 50 बुलिश लग रहा है। अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर कल अगर निफ्टी 50 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो।
और इन केस अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है, दैट इज बिलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, तो मार्केट में आप लोग क्या कर सकते हो, मॉर्निंग में यहाँ पे आप लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हो above this below this particular trend line, and जैसे price इस particular demand zone को approach करे for the second time, so you guys can plan to take a bullish trade over here. That is either you guys can sell the put option over here or can buy the call option. Now let's discuss about the Nifty Bank. तो निफ्टी बैंक का भी स्ट्रक्चर सिमिलर ही है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50. यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन ओवर हियर, या दिस इज द सप्लाई जोन इन निफ्टी बैंक, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, दिस इज द ब्रेकआउट ओवर हियर, राइट. या दिस इज द ब्रेकआउट के बाद काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया, एंड जैसा निफ्टी 50 में हुआ है कि द निफ्टी 50 इज अप्रोचिंग द डिमांड जोन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो निफ्टी बैंक भी ये जो पर्टिकुलर डिमांड जोन है यहाँ पे फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है, एंड यहाँ पे जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है दैट इज मोर इंटरेस्टिंग. रीजन बीइंग कि प्राइस डिमांड जोन के आसपास आके यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया, एंड यहाँ पे आपको एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन दिखेगा, दिस अ काइंड ऑफ अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ओवर हियर. तो कल के दिन अगर निफ्टी बैंक इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर निकलते तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो, राइट. आप लोग यहाँ पे सी बाय कर सकते हो, या नहीं तो आप लोग पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, राइट. तो दिस इज द प्लान फॉर निफ्टी बैंक अगर प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस के ऊपर खुले. इन केस अगर प्राइस इस पर्टिकुलर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बिलो खुलता है एंड मॉर्निंग में काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिखाते हो, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे पुट बाइंग का भी सोच सकते हो. लेकिन रिमेंबर द जोन्स, ये जो पर्टिकुलर जोन है दैट इज द जोन ऑफ 45,100, यहाँ से हम लोगों को रिवर्सल देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ से एक शार्प अप मूव आया है प्रीवियसली, राइट. तो आप लोग कॉशियस रहना इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, एंड रिमेंबर द की थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फिन निफ्टी. फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, दिस इज द सार बाइंग जोन ओवर हियर. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हाट इज कंसीडर्ड एज अ सपोर्ट जोन और डिमांड जोन इन द मार्केट. हम लोग को जिस भी पर्टिकुलर जोन से मार्केट में एक यू टर्न देखने को मिले, यानी तो एक शार्प बाइंग देखने को मिले, सो दिस काइंड ऑफ जोन्स इन द मार्केट आर कंसीडर्ड एज द डिमांड जोन और द पिवट जोन और द सपोर्ट जोन, वट एवर यू गाइस कॉल इट. एंड यहाँ पे हो क्या रहा है, इसी पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास, दिस इज अ डिमांड जोन ओवर हियर, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली ओवर हियर. या दिस इज द डिमांड जोन ओवर हियर, एंड यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डिमांड जोन के आसपास से यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है. एंड रिवर्सल किस टाइप के स्ट्रक्चर से देखने को मिल रहा है, दिस अ काइंड ऑफ शोल्डर, दिस इज द हेड एंड अगेन अ शोल्डर. तो प्राइस अगर इस पर्टिकुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ब्रेकआउट करता है कल के दिन, एंड अगर ऊपर के साइड अगर मूव दिखाता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग का सोच सकते हो. एंड सपोज दैट अगर मार्केट इस पर्टिकुलर डिमांड जोन के बिलो खुलता है, तो मुझे काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी में यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाएंगे, वो लोग सोचेंगे कि मार्केट में एक बेरिश सेंटीमेंट है, वो लोग जैसे यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेंगे तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके एक रिवर्सल शो कर सकते हैं. तो डेफिनेटली मैं निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 एंड फिर निफ्टी तीनों में मैं बुलिश ही हूँ. इन केस अगर मेरा कोई भी व्यू चेंज होता है मार्केट में, दैट इज इन द लाइव मार्केट, तो आई ट्राई टू अपडेट इट ऑन माई टेलीग्राम हैंडल. I hope this particular analysis video would be helpful. Thank you. See you in another video.